Navneeta, tell me like 3 topics on which you want to write 3 books. Quickly. बिना Oh, I सोचे। have not thought कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे. नहीं नहीं जल्दी बताओ। ना Okay. कोट शेयर के he just randomly said कि you won't be able to pay for it for the publishing of the book. Hmm. तो aspiring authors के लिए specifically अगर पॉइंटर्स में मेरे से पूछोगे तो मैं ये Hmm. बोलूंगी कि पहले तो डिसाइड करो व्हाई यू वांट टू राइट अ बुक, क्योंकि Mhm. मिडवे अगर छोड़ दिया तो इट डजंट लुक गुड। कोई भी काम अधूरा छोड़ दिया तो लोग है ना? सोचते हैं कि राइटर है तो कुछ भी लिख लेंगे और कैसी भी राइटिंग लिख सकते हैं। Hmm. दैट इज नॉट एट ऑल। True. कंटेंट राइटिंग इज डिफरेंट, क्रिएटिव राइटिंग इज डिफरेंट, Hmm. book writing is different, very different. Blog writing is very different. Hmm. Then article writing is different. News writing is different. मैं सारी writings के बारे में बता सकती हूँ। That is why you are here today, to help the aspiring writers, like be it a book writer, be it a content writer. सबके लिए this podcast, this conversation of you and me is going to be really helpful. I am very positive with it. Do you believe कि ऐसा होता है, like what you manifest you get that, like you believe in manifestation personally? Yes. अपने आप को कैसे उन्हें प्रिपेयर करना है और किस तरीके से एआई टूल्स को स्मार्टली हैंडल करना है, दैट इट डज नॉट, मतलब दैट इट हेल्प्स देम टू एक्सेल इन देयर करियर and it doesn't become a threat. We are discussing about career growth, etc. Do you think prompt engineering is going to be the next hot job opening in the coming years? It is already. Already. It has started and it's very hot job. मैं उसको कैसे फिक्शन में बदल देती हूँ, ये मेरी आर्ट है। Right. तो बस यही डिफरेंस है फिक्शन और नॉन फिक्शन में। Oh, you're here. Hi there. You would definitely agree that every bookshelf has a story. And Dr. Sarah is on a mission to make sure that those stories get their way out there. Hello everyone, welcome back to Stories with Nabanita. I am Nabanita, your host on this channel, wherein we uncover real stories of founders, authors, and industry leaders. If you are new to my channel, do consider subscribing, and if you are already a part of the family, then thank you so very much for your love and support. If you are enjoying my videos, then do hit the like button. So now let's talk about our today's guest, who is the renowned founder of Jordan Ventures and hashtag Har Ghar Mein Author movement, none other than Dr. Sarah. She has penned 4 Amazon bestsellers and has received 15 plus awards as a book coach, woman influencer, and woman achiever. Dr. Sarah brings wisdom, warmth, and wild passion for stories. Every word that she writes, teaches, or coaches is sprinkled with a purpose. And if you have a story inside you, then Dr. Sarah is just might be the spark you have been waiting for. I hope that you would enjoy every single minute, every single second of our conversation. So, without any further ado, let me take you inside. So, hi, Dr. Sarah. Welcome to my channel, Stories with Nabanita. I am so glad that you accepted my invitation to be a part of the show. So, I am really excited to ask you interesting questions, and I really hope that this conversation of me and you help a lot of people who are aspiring or thinking of becoming an author or have a dilemma that whether they should go ahead and start writing their own book in this AI era. So all this conversation between you and me today is going to be very interesting and it's going to help a lot of people. On that note, let's start today's conversation. So how are you doing? Namaskar Navneeta, namaskar everyone. So I am good, and as always, how are you? I am good too. So, Dr. Sarah, could you tell me, आपको कब लगा कि आपको लोगों को ये सिखाना चाहिए कि how to write a book? Because most of the people
उनको वो स्टार्ट का जो प्रोसेस होता है कि आई वांट टू राइट अ बुक, आई हैव अ स्टोरी और आई हैव लाइक एक्सपीरियंस टू शेयर, बट आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, तो वहां पे आप क्या लोगों को मतलब किस तरीके से आपको लगा कि आपको इस फील्ड में आना चाहिए, लोगों को बुक राइटिंग सिखानी चाहिए? ओके, सो आपका ये वाला जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देती हूँ हम्म। कि राइटिंग मैंने ऑलमोस्ट लाइक 2008 से स्टार्ट कर दी थी वाओ। एंड आई वाज वेरी क्लियर दैट आई हैव टू बी इन मीडिया यहाँ। एंड so I started with my dream job, my हम्म। dream company, इंडिया टुडे। हम्म। तो वहाँ से राइटिंग और जर्नलिज्म की जर्नी स्टार्ट हुई एंड दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट 2011 एग्जैक्टली टू बी वेरी प्रिसाइज। हम्म। बिफोर लाइक आफ्टर द राइटिंग स्टेंट, राइटिंग 2008 से स्टार्ट कर दी थी ड्यूरिंग कॉलेज टाइम ओके। एंड देन 2000 लाइक आई एम मूविंग वेरी वेरी फॉरवर्ड। हम्म। 2018 में मैंने अपनी फर्स्ट टू बुक्स लिखी थी ऑलराइट। और इट वाज लाइक कि जो एक लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, मैं एक्सपीरियंशियल राइटिंग ज़्यादा अपनी करती हूँ, हम्म। सो अंडर माय नेम। सो हम्म। वो जब की और उसके बाद फिर यू नो व्हेन यू बिकम एन ऑथर यू गेट हम्म। रिकॉग्निशन, यू हम्म। get invites from all the like different प्लेसेस। राइट। सो वो चल रहा था, वो वाला फेस चल रहा था और साथ में जॉब भी चल रही थी। हम्म। उसके बाद केम टू 2020, तब तक मेरी फोर्थ बुक में उस पे काम कर रही थी, ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गई थी। ऑलराइट। आई वॉज सर्चिंग फॉर अ गुड पब्लिशर। तब तक बुक राइटिंग का एक बस ये था कि मैं लिख रही हूँ ओके। और मैं तब तक घोस्ट राइटिंग कहीं ना कहीं कर रही थी और ऑलरेडी एक कुछ पब्लिशर्स के साथ, कुछ टॉप इंडिया के टॉप पब्लिशर्स के साथ एज एन एडिटर काम कर रही थी। हम्म। सो ये तो चल ही रहा था, बट फिर केम 2020 द लॉकडाउन पीरियड और उसी टाइम पे मैंने अपनी फोर्थ बुक भी कंप्लीट कर ली थी। हम्म। फिर आई वाज सर्चिंग फॉर अ गुड पब्लिशर फॉर दिस बुक। ओके। नाउ आई वाज लाइक कि मैं बहुत सारे लोगों से मैंने बात की, आई वाज वेरी क्लियर कि मेरे को सेल्फ पब्लिशिंग में ही जाना है, हम्म। कोई और जगह पे ट्रेडिशनल पब्लिशिंग या इंडी पब्लिशिंग वैसे नहीं जाना है, ठीक है। हम्म। सो एक जाने माने पब्लिशर से बात की हम्म। और ऑलमोस्ट लाइक इट वाज लाइक कमिंग टू फाइनल थिंग्स। हम्म। देन ही सडनली सेड कि बिना बिना कोट शेयर किए, लाइक बात चल रही है, बात चल रही है, एंड देन बिना कोट शेयर किए ही जस्ट रैंडमली सेड कि यू वोंट बी एबल टू पे फॉर इट, फॉर द पब्लिशिंग ऑफ द बुक। अच्छा। लाइक आई वाज लाइक ये क्या हुआ, वाई? लाइक मी हाँ। हाँ। me from the writing industry, me हम्म। already established author, हम्म। now have written 4 books, have helped many of my clients write their books, हम्म। edited so many books. हम्म। तो तब तक ऑलमोस्ट 2020 तक ऑलमोस्ट मेरा 12 11 12 13 years का एक्सपीरियंस था। राइट। हाँ। I was like ये क्या हुआ एकदम से, I was like in shock. हम्म। And then um, I still asked him कि क्या है कोड, he never replied, but बाद में उनका जो मैंने पैकेज जो उनकी वेबसाइट पे था वो देखा, for 20+ copies he was charging like a lakh of you know मनी। just lakh हम्म। पब्लिशिंग के लिए और 20 कॉपीज। अच्छा। आई वाज लाइक कि ऐसा ऐसे कैसे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर रखा है वो काम, उतना पब्लिशिंग का प्रिंटिंग हम्म। करवा रखी है, तो मुझे पता है कि किस तरह से कॉपीज या बुक्स आती हैं, हम्म। या प्रिंट होती हैं, या क्या राइट। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन वर्क करता है, कैसे हम्म। वर्क हम्म। करती है। सो आई स्टार्टेड स्पीकिंग टू
more of the people like me. And also, I started speaking to people in my niche as life coach. हाँ. So, बहुत सारे कोचेस से बात की, बहुत सारे ट्रेनर्स, स्पीकर्स से बात की, जिन्होंने उसी टाइम, उसी दौरान हम्म. बुक अपनी लिखी थी और कहीं ना कहीं किसी और के थ्रू पब्लिश करवाई थी। ओके. तो वहाँ पे पता चला कि उन लोगों ने भी ऐसे ही पे किया है, एंड दे वर नॉट एट ऑल हैप्पी विद देयर पब्लिशर्स, and also they were not good with their writing styles. एक raw writing और एक professional writing, and also from coming from someone who understands book writing, है ना? All these are very 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 different aspects. Absolutely. तो कहीं ना कहीं किसी को अपनी बुक उस तरह नहीं पसंद आई, किसी को बस ये लग रहा था कि ये तो छप गई है बस, और मैंने इतना पे भी किया है, इन सब चीज़ों में मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला, ऐसे बहुत सारे गैप्स एंड लूप होल्स थे। एंड आई वाज लाइक कि what am I doing being in the industry from so many years, not days, not months, but years. तो थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म किया, और one of my partners, like I partnered with a friend, और फिर हमने उस लॉकडाउन के दौरान जॉट डाउन लॉन्च किया। सो आई ऑलवेज से जॉट डाउन वेंचर्स, लाइक जॉट डाउन हैपेंड इन लॉकडाउन। अच्छा. So we launched Jot Down, Hmm. and the vision was very clear to enable people like you and me, or whoever wants to write a book, and enable them gain respect, recognition, using book as a tool in their respective market or industry sectors, or even in general also. So बुक राइटिंग से एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ होती है, यू गेन रिकॉग्निशन, यू गेन रिस्पेक्ट। तो जो मैंने इंडस्ट्री में फील किया, जो मैंने इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस किया, तो आई फील दैट I should vouch for that. Huh. So I'm True. doing that, and that's how I came into book writing as a book coach. जिस तरह से मैं हेल्प कर रही हूँ अभी, almost it's like more of 1-to-1. So I've already touched that 45 वाला mark. 50 हो Wow. जाए तो मैं बता दूंगी। Great. 50. So you have to be dedicated and you have to help others. जब तक आप दूसरों की लाइफ को टच नहीं करोगे, तब तक आप खुद भी सेटिस्फाइड नहीं फील कर सकते हो। whenever you walk, आपको वो you faced it. तो आपने खुद उस चीज को फेस किया, and that is where you came out with the venture of Jot Down. कि मैंने जो फेस किया वो दूसरों को ना करना पड़े। सो दिस इज समथिंग दैट डजंट हैपन विद मोस्ट ऑफ द पीपल नाउअडेज। मैंने फेस किया तो दूसरों को भी करना चाहिए। तो वो चीज आई थिंक यू हैव डन रिमार्केबल टास्क। व्हाट वाज द मिशन ऑफ योर हैशटैग हर घर में ऑथर? दैट वाज द हैशटैग यू स्टार्टेड विद, राइट? Yes, so when I found that gap, तो मुझे लगा कि मैं बीइंग इन द इंडस्ट्री, बीइंग इन द सेक्टर, क्या कर रही हूँ, लोगों के साथ इनजस्टिस कर रही हूँ। ट्रू. So me being an expert, so I'm not bragging about it, but it's true, right? क्योंकि मैं ऑलमोस्ट अब आज की डेट में और आज के ईयर, इट्स 2025, सो आज देखो तो ऑलमोस्ट 16-17 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। So, उसमें जब मैं देखती हूँ पीछे कि मैं कर क्या रही हूँ, सो आई नो वेयर इज माई एक्सपर्टीज लाइज एंड हाउ आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन पीपल्स लाइव्स। सो वहाँ शुरू से ही 2020 से ही मुझे बहुत अच्छे से क्लियर था, क्लैरिटी थी कि इस मिशन को आगे लेके जाना है और हर घर तक पहुंचाना है। सो दैट्स वाई हर घर में ऑथर मिशन उसी टाइम पे ही लॉन्च किया था। हाँ, क्या था। और इट्स लाइक आई एम वर्किंग स्टेप बाय स्टेप, वन स्टेप एट अ टाइम। Yeah, it's going on. Okay, great. So, Dr. Sarah, you have got around 14 plus awards and you are a part of the 101 Influential Women in India.
So how has this helped your journey till now, and what do you expect in the coming years from this? ओके, सो नवनीता, एक चीज बताती हूँ। Mm-hmm. जब आपको पहला अवार्ड मिलता है ना, तो बड़ी खुशी होती है ना। बहुत खुशी होती है कि आई एम बीइंग रिकॉग्नाइज्ड फॉर व्हाट आई एम डूइंग। Mm-hmm. एंड देन सेकंड अवार्ड मिलता है, तो फिर एक और वो होता है, एक्साइटमेंट होता है। एंड देन व्हेन अवार्ड कीप्स ऑन रेनिंग, सो Mm-hmm. कि नाउ आई एम डूइंग बेटर हाँ. in the industry, Mm-hmm. but then when you reach to that point जहाँ पे नेक्स्ट अवार्ड, नेक्स्ट अवार्ड, नेक्स्ट अवार्ड, नेक्स्ट रिकॉग्निशन मिल रहा है, तो वो जो एक्साइटमेंट है वो तो बनी रहती है कि यस, आई एम डूइंग समथिंग गुड। Mm-hmm. बट उसके साथ एक चीज और ऐड हो जाती है, विच इज दैट नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज इंक्रीज्ड। अब आपके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है ना। Mm-hmm. तो ये जो एक एक्सपीरियंस, एक फीलिंग होती है, आई एम एक्सपीरियंसिंग इट राइट नाउ। Mm-hmm. I have very huge responsibilities on my shoulder, and which I have to fulfill with the best of the best things, resources, Mm-hmm. with authenticity, with Right. credibility, with what I have, I stand for, what are my basic values, Mm-hmm. ethics। Mm-hmm. उसके साथ मुझे अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी आगे लेके जाना है। एज वी टॉक्ड अबाउट, लाइक Mm-hmm. जो मेरा मिशन है, तो उस पे मैं काम कर रही हूँ, उस पे लोगों को जोड़ रही हूँ, और बस आगे बढ़ रही हूँ। सो इट्स लाइक मोर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ। Mm-hmm. Okay, so from this hashtag हर घर में author and jotdown.in, right? So how these two like fall in place? How do you people recognize कि yeah, people come to you कि I'm thinking of writing a book. So what is the process? Like this would help the aspiring authors. So that is why I'm asking this question. कि अगर कोई सोच रहा है कि वो book लिखेगा, right? He has a story or he has an experience, he or she whosoever. So वो करेगा कैसे आपके साथ इस चीज को? मतलब आप कैसा ये प्रोसेस है कैसा आपके साथ? नवनीता, यू हैव मेड अ वेरी गुड पॉइंट हियर। हम्म. और ये बात मैं दूसरी बात से थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहूँगी हम्म. कि जैसे हम एक मिशन को जानते हैं, बहुत ही फेमस है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, या राइट. बेटी हाँ. पढ़ाओ या बेटी बचाओ, ऐसे हाँ. करके। हाँ. सो व्हाट वी डू देयर, बहुत हम्म. बड़े बड़े एक्शंस तो लोग कर ही रहे हैं, बट हम्म. हम एज अ कॉमन पर्सन क्या कर सकते हैं हम्म. कि जो लाइक हमारे घर के आसपास कोई ज़रूरतमंद बच्ची है, हम्म. उसकी पढ़ाई को हमने कहीं ना कहीं बैकअप कर लिया, है ना, हम्म. हम्म. कंट्रीब्यूट कर दिया, कहीं हम्म. बुक्स, स्टेशनरी दे दी, तो हम्म. वो एक कंट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं, है ना। राइट. हम्म. स- चाहे तो ऐसे ही जब कोई भी इन द एंटायर कंट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट कंट्री वर्ड, कोई भी किताब लिख रहा है, कोई भी ऑथर बन रहा है, दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द मिशन हर ट्रू. घर में ऑथर। हम्म. सो इट्स नॉट जस्ट मैं पकड़ के नहीं बैठी हूँ कि नहीं ये मेरा मिशन है, मुझे को पूरा करना है। एवरी हम्म. कॉन्ट्रीब्यूटिंग, राइट। हम्म. सेम लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ट्रू. ऐसी हम्म. और भी मिशंस हैं, विकसित हम्म. भारत, है ना। हम्म. हम्म. बहुत सारे इस तरह के मिशन है, और कहीं ना कहीं एक मेरा भी, मैं भी इस मिशन को पकड़ के चल रही हूँ। और जो भी ऑथर बनता है वो कहीं ना कहीं इस मिशन को कंट्रीब्यूट कर रहा है। ट्रू. नाउ कमिंग टू योर सेकंड पॉइंट, जहाँ पे आपने कहा कि जॉट डाउन मीडिया या जॉट डाउन वेंचर्स के थ्रू कैसे लोग जो एस्पायरिंग ऑथर्स हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं। आई हम्म. एम ऑलवेज देयर ऑन हम्म. माई ईमेल, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक हम्म. में नहीं यूज करती हूँ पर हम्म. नहीं use करती। अच्छा. तो I'm there on Instagram, I'm there on LinkedIn, हम्म. I'm there on my email, always there. हम्म. So corporate life आपको email चेक करना सिखा देती है, so I'm there. Agree with you.
Hmm. Yes. Hmm. One can write to me Hmm. directly. Okay. Secondly, I am starting to conduct um, master classes and workshops online as well. Hmm. तो वहाँ पे भी लोग कनेक्ट कर सकते हैं. We will certainly talk about it Hmm. in the coming days Hmm. more openly. Right. And yes, that's the thing. और Hmm. अगर किसी को जस्ट गाइडेंस लेनी है 5-10 मिनट के लिए, कुछ क्वेश्चंस हैं, they can Hmm. always ask. I'm always open for that. Okay. So you So offer consultation also for small things like which you can be sorted quickly. yes, Hmm. this I'm doing from like past 5 years now. Hmm. Wow. अगर कोई बच्चा एज एन स्टूडेंट भी आके मेरे से पूछता है कि मैम कैसे किताब लिखनी है, या Hmm. कुछ स्पेसिफिक एरिया में उनको किताब लिखवानी है, Hmm. या कुछ पॉइंट है जो क्लियर नहीं हो रहा है, आई जस्ट गाइड देम. Wow. सो या. Seriously, I always feel I connected to you via LinkedIn, right? And I randomly sent you the connection request. I didn't feel कि आप accept कर लोगे, right? Seeing your profile, but you did. So, and we worked also together वी for, वर्कड इन yes, 2013. yes, 2013, way back. यस. एंड ये जो भी चीज है कि हम जो हमें पता है, जो हमें आता है, हम वो दूसरों के साथ शेयर करें, राइट? हेल्पिंग पीपल, मनी मनी तो रहेगा, वो तो है. सो उसके अलावा जस्ट टू स्प्रेड, जो मुझे मालूम है, जो मेरे पास नॉलेज है, मैं वो दूसरों से शेयर करूं. सो आई थिंक दैट इज व्हाट मेक्स अस ह्यूमन at the end of the day, and that would make you satisfied also at the end of the day कि I touched lives of others, I helped. अगर एक को भी हेल्प करके घर वापस आ रहे हैं तो वो एक सेटिस्फेक्शन होता है कि नहीं, आई एम, कि मैं इंसान हूं, मैंने एक इंसान होकर दूसरे इंसान की मदद की. सो यस, सो प्रोफेशनलिज्म एंड ह्यूमैनिटी, आई थिंक ये दोनों को मिक्स करके अगर हम जिए तो लाइफ वुड बी ब्यूटिफुल, राइट? ट्रू ट्रू. यहाँ पे एक चीज़ बस मैं ऐड करूँगी जो मेरा अपना पर्सनल है. ऑब्वियसली प्रोफेशनलिज्म हैज़ टू बी देयर एंड ह्यूमैनिटी हैज़ टू बी देयर. तो मेरे मेरे एज अ पर्सन, प्रोफेशनलिज्म एंड ह्यूमैनिटीज आर लाइक बोथ 50-50. हम्म. कहीं कहीं कुछ लोग उसको लाइक प्रोफेशनलिज्म को 80% दे देते हैं, और हम्म. ह्यूमैनिटी को लाइक दे साउंड मोर बिजनेसी बिजनेसी. वो मेरे नेचर में ही नहीं है. तो कहीं ना कहीं वो शायद रिफ्लेक्ट भी करता है. And I think I am going to be the best example of that. यस यस. सो इसीलिए Hmm. हमने कनेक्ट किया आफ्टर सो True. मेनी लाइक इयर्स, आई Years. विल. Hmm. हाँ. 2013 के बाद हमने कब कनेक्ट किया? आई थिंक ड्यूरिंग बीच में, हाँ, लॉकडाउन. लॉकडाउन में भी किया था. इससे पहले we worked like 2 years back, if I'm not हम्म. wrong. What would you advise to the aspiring authors if anyone is willing कि वो author बनेगा, right? Not about one book, right? हम्म. अगर he or she is willing or thinking of starting a career as a book author, ठीक देन है. उसके लिए क्या उसका माइंडसेट होना चाहिए, एंड व्हाट आर द स्मॉल थिंग्स दैट ही और शी कैन ऐड टू देयर डे टू डे रूटीन, यू कैन से, that will help them to like excel as an author. Hmm. Okay. So there are so many things that you have asked. हाँ. Very cleverly asked, I would say. Thank you. ओके. Hmm. तो एस्पायरिंग ऑथर्स के लिए स्पेसिफिकली अगर पॉइंटर्स में मेरे से पूछोगे तो मैं ये Hmm. बोलूँगी कि पहले तो डिसाइड करो व्हाई यू वांट टू राइट अ बुक, क्योंकि Mhm. मिडवे अगर छोड़ दिया तो इट डजंट लुक गुड. कोई भी काम अधूरा छोड़ दिया तो, है ना? Hmm. तो इसलिए कोई भी काम शुरू करो, कोई भी, इवन बुक राइटिंग, Hmm. complete it and Hmm. become an author. Just not write the manuscript and keep it in your closet Hmm. and make it rest for years. क्योंकि दादा पर दादा ने भी ऐसी कभी किताब अगर लिखी होगी तो ऐसे ही लिखी होगी. ऐसा नहीं है, आज के Hmm. ज़माने में बिल्कुल भी नहीं है. Hmm. स्पेसिफिकली एआई आ गया है तो Right. थिंग्स हैव मूव्ड
वेरी फास्ट, रैपिडली। रैपिडली। तो हम्म। अब वो टाइपराइटर का ज़माना नहीं है, अब वो कंप्यूटर्स का भी ज़माना नहीं है नहीं है। ना। हम्म। टैब और लैपटॉप पे खटाखट काम होता है। हम्म। सो इफ यू आर थिंकिंग टू राइट अ बुक, जस्ट स्टार्ट राइटिंग। हम्म। क्लैरिटी के साथ लिखो कि क्या क्या लिखना है, एक थीम पकड़ के लिखो। डू नॉट जस्ट गो हेयर वायर, क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास हजारों, नॉट 10, नॉट 100, बट हजारों आइडियाज आते हैं हम्म। कि मैं इस पे भी किताब लिख सकती हूँ या लिख सकता हूँ, मैं इस पे भी किताब कंप्लीट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो देर आर सो मेनी थिंग्स, सो मेनी टॉपिक्स, आइडियाज दैट कम अलोंग, बट स्टिक टू वन हम्म। विच यू फील कि ये मेरे हार्ट के सबसे ज्यादा क्लोज है, एंड हम्म। with which I am going to, contribute. Once your book is complete, do not think कि बस वो अपने आप ही बिकने लगेगी. Treat हम्म। it as a product. हम्म। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट होता है उसकी मार्केटिंग, उसकी प्रमोशन इम्पॉर्टेंट होती है. Either ways you want to go ahead with, like organic or inorganic, you want to put in money or you want to put in your time and effort, वो depending on you and your decisions. Make a wise strategy कि हम्म। किस तरह लेके जाना है आपकी किताब को, है ना. हम्म। There are different aspects also. It's just not that कि आपको बुक सेल ही करनी है तभी आप ऑथर बनना चाहते हो, राइट. हम्म। आपके डिफरेंट डिफरेंट आउटकम्स हो सकते हैं, जैसे कि आप किताब सिर्फ इसलिए लिख रहे हो क्योंकि आपके करियर में कंट्रीब्यूट करे. हो सकता है जिस कॉलेज में भी आप एडमिशन लेना चाह रहे हो, यू कैन जस्ट शो इट दैट दिस इज वन ऑफ योर अचीवमेंट्स दैट यू हैव done. And Done. book is one of the biggest achievements, writing a book, because it takes a lot of patience. It takes a lot of courage to be out what with your thoughts and ideas, conveying to different people, conveying it in public. It takes a lot of courage. है ना. Third, you are treated as an expert. People start recognizing you as an expert when you are an author. तो ये मैं बोलूँगी कि जब आप किताब लिखना शुरू करते हो, लिखते हो, कंप्लीट करते हो, think of all the aspects, cover all the aspects, go out loud, shout, whatever you want to do with the promotion, marketing strategies, go with that. And yeah, good luck, हम्म। and I'm always there to help you and contribute in whatever way I can. Great. Thank you so much for elaborating the whole thing. What should be the mindset? And I think all these suggestions and ideas would be really helpful to people who are thinking of starting or are halfway with a book, right? They are lost or they are in search of help. I think the pointers that you just put light on are going to really be helpful for them. So after writing one book, right, the person, मतलब उस लिखने के बाद उस person के अंदर what kind of changes can someone expect? मतलब जब start किया, जैसे you said कि 1000 उसके पास ideas होंगे कि वो इस पे भी लिख ले, उस पे भी लिख ले. तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि कैसे ये डिसाइड होगा कि किस टॉपिक पे लिखना है, राइट. दिस इज वन क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन इज कि अगर कोई हाफ वे किसी टॉपिक पे है, जैसे अभी मैंने पूछा आपसे या कहा आपसे, तो वो कैसे उसको फिर कंटिन्यू करेगा, या फिर उसको ये भी हो सकता है बीच में आगे कि नहीं, मुझे आगे का कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या करना है, तो लेट्स स्क्रैप द आइडिया एंड स्टार्ट विद समथिंग अदर, या कोई नया टॉपिक पे लिखते हैं. So, do you face this kind of things with the current authors whom you are mentoring, right? Currently. Yes, most of the time there हाँ. is. हम्म. और शुरू में तो बहुत ज्यादा होता था कि जब हम किताब के बीच में पहुंच जाते थे तो हम्म. ऑथर कहते थे कि नहीं, अब मेरे को दूसरे टॉपिक पे किताब लिखनी है. हम्म. देखो, सीधी सी बात है, और लाइफ का ये फंडा भी है हम्म. कि आप जब किसी चीज को स्टार्ट करते हो, उसको हमेशा कंप्लीट करके तब साइड करो,
है ना? हम्म मिड वे मत छोड़ो, मैंने शुरू में भी कहा था कि कोई भी हम्म काम अधूरा मत छोड़ो, उसको हम्म कंप्लीट कर दो, हम्म ताकि वो जो एक नेचर में बही खाता चल रहा है ना, हम्म वो हम्म 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 उस पे एक स्टॉप लग जाए, या हम्म नेचर को एक मैसेज चला जाए कि दिस ट्रांजैक्शन इज डन, हम्म so that you are not in the loop. I'm talking very on a different aspect. I hope you will understand this कि हम्म नेचर में जब कोई हम एक थॉट भी डाल देते हैं ना, हम्म तो वो कहीं ना कहीं फलने लगता है. सो दैट्स दिस इज ऑल्सो विद द बुक आइडियाज. जब हम एक आइडिया लेके चलते हैं, हाथ पे काम कर लेते हैं, नेचर उस पे काम करने लगता है ना, कि आप क्या सोच रहे हो. लेट्स से डॉक्टर सारा इज राइटिंग अ बुक और नवनीता इज राइटिंग अ बुक. हम्म नवनीता, टेल मी लाइक 3 topics on which you want to write 3 books क्विकली. बिना Oh, I सोचे. have not thought कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे. नहीं नहीं, जल्दी बताओ. Okay. So definitely one on content writing, what changes I have seen in past हम्म. 12, 13 years of my ठीक career. है. हम्म. दूसरा is how is social media going to impact life of others. And third, very close to my heart, मैंने कभी सोचा नहीं है इसके बारे में, but it is there. अभी आपने पूछा तो आया मेरे दिमाग में ये topic. That is how you feel being a left-handed. लेफ्ट So हैंडेड. I am lefty. So हम्म. I faced a lot of things throughout my life. So you mentioned 3 topics. One, content writing. Then you told about social media, and third is how to be like how do you feel when you are lefty, है ना? Hmm. Hmm. शुरू से हो सकता है वो आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताएंगे, बचपन में लाइक लोग कैसे Hmm. 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 जो बाहर देखते हैं पहली बार, वो क्या Hmm. कैसे परसीव करते हैं, है True. ना? Hmm. So now these among these 3 topics, 2 जो हैं वो प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाते हैं, True. जो के करियर को और बूस्ट देंगे, है Hmm. ना? Hmm. एंड वन इज मोर ऑफ सेल्फ हेल्प, एंड मोर ऑफ जो लोग लेफ्ट हैंड से ज्यादातर अपना काम करते होंगे, लिखते होंगे, है, Hmm. तो वो उनके लिए ही होगा. या Hmm. जो अभी अभी जिन्होंने एक्सप्लोर किया है कि ओ आई एम अ लेफ्टी एंड नाउ हाउ पीपल आर सीइंग मी, परसीविंग मी, तो Hmm. वो बुक शायद उनके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, True. है ना? सो नाउ हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि जो हम बात कर रहे थे कि Hmm. बीच में छोड़ देते हैं. Hmm. Hmm. नवनीता ने कंटेंट राइटिंग, ये 3 टॉपिक्स एकदम क्लियर है नवनीता को, ये 3 Hmm. टॉपिक्स पे लिखना है. Hmm. कब लिखना है, कैसे लिखना है, वो बात की बात है. Hmm. एक, लेट्स से अभी नवनीता को अपने करियर में बूस्ट चाहिए. हम्म Hmm. तो शी thought why not content writing, because content writing is something which is not going to um, Hmm. fade out or Hmm. something. Even if AI is there, it's Hmm. more of राइटर्स चाहिए ही चाहिए. और True. आज के परिप्रेक्ष्य में देखो तो लाइक कोई भी है, उसको लिखना आना ही चाहिए, बिकॉज सोशल मीडिया पे आप लिख रहे हो, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम कैप्शंस हैं, Hmm. रील्स हैं, Hmm. स्क्रिप्ट्स हैं, देयर आर Scripts है. डिफरेंट Hmm. एस्पेक्ट्स ऑफ राइटिंग. Hmm. कैसे आप लिख रहे हो, क्या टेक्निकलिटीज होती हैं, क्या एक बेसिक चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें आनी चाहिए. Hmm. मे बी आपकी बुक ये कवर करेगी. आपने Hmm. जब लेट से आपने आधी किताब लिख दी, अब आपको लगा नहीं सोशल मीडिया पे मेरे को, अब मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया ज़्यादा तूल पकड़ रहा है, तो मेरे को अब Hmm. सोशल मीडिया पे काम करना चाहिए. एंड यू स्टार्ट राइटिंग ऑन सोशल मीडिया और रिसर्चिंग अबाउट सोशल मीडिया. नाउ व्हाट आई सेड अर्लियर कि आपने वो लूप खोल दिया अपना Hmm. बुक, है ना? Hmm. Hmm. तो नेचर को कैसे पता चलेगा कि क्या मैनिफेस्ट करना है, कौन से वाली चीज पे? आपने नेचर को भी कंफ्यूज कर दिया. True. है ना? Hmm. वो नहीं करना है, वो बिल्कुल भी नहीं करना है. Hmm. एक काम करो, Hmm. देयर इज ऑलवेज अ टाइम. थोड़ा और जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि क्या टेक्निकलिटीज हैं बुक राइटिंग में. Hmm. एक बुक आप कंप्लीट करोगे, दूसरी पे Easy हो आप जाएगा. इमीडिएटली काम कर सकते हो, बिल्कुल.
आप अपनी मैन्युस्क्रिप्ट कंप्लीट करो, आप एडिटर को भेजो या जैसे भी आप काम कर रहे हो, पब्लिशर को भेजो, प्रिंटर को भेजो, जब तक आप वो बाकी सब काम कर रहे हैं आप अपनी दूसरी किताब पे काम कर सकते हो। नो वन सेड कि एक ही किताब लिखनी है पूरी जिंदगी में या दो ही किताब लिखनी है। यू कैन राइट एज मेनी नंबर ऑफ बुक्स You एज want. वांट एंड एज यू कैन, Hmm. है ना? Hmm. सो इट इज वेरी इजी and it is very important to close whatever you started Hmm. and go ahead with it. Otherwise you won't be able to manifest what whatever um, I would say recognition you um, deserve. ठीक है। Hmm. और दूसरी चीज आपने पूछी थी कि कैसे डिसाइड करें कि कौन सी बुक पहले या कौन से आइडिया पे पहले Hmm. काम करना Hmm. चाहिए फॉर द Hmm. बुक। तो सिंपल है, जैसे अभी मैंने आपका एक वो आउटकम के साथ ही बता दिया है ना, Hmm. Hmm. कि अगर आपको ये लगता है कि मेरे को इन लोगों को लेफ्टीज को ज्यादा हेल्प करनी है, Hmm. अभी हेल्प करनी है, यू Hmm. राइट, यू डिसाइड ऑन दैट बुक। अगर आपको लगता है नहीं अभी मेरे करियर को ज्यादा या मेरे बिजनेस को ज्यादा बूस्ट मिलना चाहिए, तो यू डिसाइड विथ दैट बुक। नाउ अब आपके केस में क्या होगा कि आपके बिजनेस में सोशल मीडिया भी है, कंटेंट राइटिंग भी Now I है ना? will be in a fix. यस, नाउ हाउ डू यू डिसाइड इट? नॉट इंकी पिंकी पोंकी। मैं अभी बोलने वाली थी टॉस कर लेंगे आईपीएल के नहीं, टॉस जैसे। भी नहीं कर सकते यहाँ हाँ। पे। अब अगर मैं ये कहूँ कि नवनीता अगले एक साल के लिए या लेट्स से वेरी शॉर्ट टर्म 6 हम्म। महीने के लिए आपका बिजनेस का फोकस कहाँ पे रहेगा? हम्म। सोशल सोशल मीडिया, मीडिया पे या कंटेंट राइटिंग पे? कंटेंट राइटिंग? हाँ, सोशल मीडिया देन पे। सोशल मीडिया इज योर हम्म। आंसर, सिंपल। Social media is my answer because I am यस, going to remain close with these things. Social media से जो भी associated है, तो accordingly writing on that topic would be easier for me यस, because मैं एब्सोल्युटली। research भी करूंगी according around that only. और मैं तो कहूंगी कि दोनों बुक लिखो, क्योंकि सोशल मीडिया के बाद लोगों को हम्म। बताना पड़ेगा ना कि लिखना कैसे है और लिखना क्या है। हाँ। क्योंकि कुछ भी नहीं लिख सकते हम True, कैप्शन that में, is true. रील्स में, पोस्ट हम्म। में, carousels में, लिंक्डइन पोस्ट में, आर्टिकल्स में हम्म। कुछ भी नहीं लिख सकते। व्हाट आर द हम्म। टेक्निकलिटीज, व्हाट आर द डिफरेंसेस स्पेसिफिकली। लोग हम्म। लोग हम्म। सोचते हैं ये एक बहुत अच्छा वो है कि लोग सोचते हैं कि राइटर है तो कुछ भी लिख लेंगे और कैसी भी राइटिंग लिख सकते हैं। हम्म। दैट इज नॉट एट ऑल। True. कंटेंट राइटिंग इज डिफरेंट, क्रिएटिव राइटिंग इज डिफरेंट, हम्म। बुक राइटिंग इज डिफरेंट, वेरी डिफरेंट, ब्लॉग राइटिंग इज वेरी डिफरेंट, हम्म। देन आर्टिकल राइटिंग इज डिफरेंट, न्यूज राइटिंग इज डिफरेंट। मैं सारी राइटिंग्स के बारे में बता सकती हूँ। That is why है you ना? are here today to help the aspiring writers, like be it a book writer, be it a content writer. सबके लिए this podcast, this conversation of you and me is going to be really helpful. I am very positive with it. Okay, so जैसे आपने नेचर की बात की कि आपने एक बुक स्टार्ट की, आपने मैनिफेस्ट किया कि मैं ये बुक लिखूंगा, नेचर गॉट द इन्फो, राइट? सो साइंटिफिकली, सो डू यू बिलीव कि ऐसा होता है, लाइक व्हाट यू मैनिफेस्ट यू गेट दैट, लाइक यू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन पर्सनली? यस, यस। हम्म। मैं हनुमान जी का ही एग्जाम्पल लेती हूँ। हम्म। हनुमान जी ने, मतलब हनुमान जी को लगा था ये सूरज मुझे खाना है, आम, हाँ। भले ही उसको आम समझ रहे थे, हम्म। पर वो जाके उनको खा के आए थे, वो उन्होंने राइट। मैनिफेस्ट किया था। व्हाट एन एग्जाम्पल, तो अमेजिंग। आई बिलीव हम्म। इन हनुमान जी हम्म। एंड सो आई सी हिम। हम्म। ये पूरी जो लाइफ हम्म। है ना, किस तरह से उन्होंने अपनी राम जी को डेडिकेट कर दी थी, हम्म। कर दी है। आई वुड से कभी अभी है भी वो यार। राम जी के लिए ही काम कर रहे हैं, ट्रू। है ना? हम्म। वी ऑल हैव दैट हनुमान एज इनर गुरु इन आवर हार्ट्स, इन हम्म। हम्म। वो जो मैनिफेस्टेशन है, वो जो हनुमान बैठे हैं अंदर, है हम्म। ना, हम्म। वो जब भी कोई भी एक थॉट आता है वो मैनिफेस्ट करवाने की पूरी लगन, पूरी कोशिश करते हैं। हम्म।
इसीलिए इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ कि कोई भी लूप खुला मत छोड़ो। कहीं पे भी लगता है कि ये बुक कंप्लीट करनी है, ये आइडिया कंप्लीट करना है, इट्स जस्ट नॉट अबाउट बुक, इट्स अबाउट एनीथिंग दैट यू आर डूइंग, दैट यू वांट टू डू, ट्रू। कंप्लीट इट, हम्म। कंप्लीट। तो ऐसा नहीं है कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ, मैंने कोई लूप्स नहीं छोड़ रखे हैं, बहुत सारे लूप्स हैं। एंड थ्रू थ्रू लाइक टेलिंग यू, आई एम ऑल्सो टेलिंग माई सेल्फ कि हम्म। मेरे को अभी वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं, द बैक ऑफ माइंड, कि ये हम्म। कंप्लीट करना है। हम्म। तभी तो वो मैनिफेस्टेशन और स्ट्रांग होगा। है ना, आपने देखा होगा कि लोगों के मुंह से जबान से निकलती है वो चीज़ और कंप्लीट हो जाती है। हम्म। कैसे होती है? That inner guru, that Hanuman who is sitting inside you, in you, हम्म। is already doing that work. है ना, वो ट्रू। नेचर को बता रहे हैं कि ये करना है, ये करना है, वो आपसे अपने आप करवा रहे हैं, इस रेंटेड बॉडी से करवा रहे हैं। Right. So, as you said about or talked about AI in last few of your answers, so with the AI, just say it's not a new thing. Like in my last podcast, I asked one person, जिनका interview था, he is very much into AI, and he said कि AI 10 साल पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा. Right, and we had a quite deep conversation about ethical AI, etc. So my question to you here is that कि writer है, ठीक है, जैसे मैं content writer हूँ, I have seen the dark phase of AI. I need to face it. ठीक है. So anyone who is thinking of coming into the social media or want to become a content writer, content marketer, उनको AI को साथ में लेके चलना है. Right? So now my question to you is, it's going to be helpful for me also and to many other people who are into this industry. And जो नए आ रहे हैं उनके लिए भी ये अच्छा रहेगा क्वेश्चन कि अपने आप को कैसे उन्हें प्रिपेयर करना है और किस तरीके से एआई टूल्स को स्मार्टली हैंडल करना है, दैट इट डज नॉट, मतलब दैट इट हेल्प्स देम टू एक्सेल इन देयर करियर एंड इट डजंट बिकम अ थ्रेट. So what would be your suggestion to this? Okay. So before I answer, I want to ask you, when you mentioned in your question about like dark phase of AI, you have seen that. What is Mm-hmm. that? Dark phase, as in, as per me, is clients we were working with for content writing, because I myself was a content writer, solely a content writer, and not into content marketing or social media, anything. Right. So I started with social media in 2023, honestly. So Okay. why? Because I saw a dip into the requirement of only content. A website or a brand is not into solely content writing anymore. The need of bulk content was gone, right? The things that we used to work on. So that is where I got a chance of, I took it as an advantage ki chalo, I got a gap. My mind is free. So now I can learn something new and can explore new avenues. And that is where I came across content marketing and I started social media and content marketing side by side. Right. So from that perspective, I'm saying कि जैसे मैंने फेस किया, फेस इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कि प्रोजेक्ट्स कम हो जाना, like a dip in the requirement wherein I was not able to take myself, give myself leaves. वहां पे I am free day after day, right? And I'm going through my old files, right? So वहां पे I can say कि मैंने अपने आप को मार्केट नहीं किया, या मैंने अपने आप को अपस्किल नहीं रखा, अपने आप को रेडी नहीं रखा. I was not aware of, or I was not following the trend at that point. Right now I keep myself updated. So वो सारी चीजें तो है ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, क्या एक बंदे को अपने आप को किस तरीके से तैयार रखना चाहिए टू cope up with the technological advancements happening in this field so rapidly after the, like, when you click about or search about on Google किसी भी चीज के बारे में, ठीक है, कोई AI टूल फॉर सो एंड सो टास्क, ठीक है, आपको एक लिस्ट पूरा मिल जाएगा, AI tools doing the same thing on different names, right? So
different companies are also like, और सबसे बड़ी बात है सेम रश जो कि ACO के लिए यूज होती है, AHREF जो कि ACO के लिए यूज होती है, कीवर्ड रिसर्च एंड ऑल दैट. तो all those people are also writing articles or blogs, I would say blogs. कैसे आप AI को यूज करके अपना ACO का रिसर्च अच्छे से कर सकते हो, या हाउ व्हाट काइंड ऑफ प्रॉम्प्ट्स यू शुड गिव टू ChatGPT. सो दे आर ऑल्सो अपग्रेडिंग देयर सेल्व्स. तो हमें जो कि राइटर्स हैं हम, तो हमें अपने आप को कैसे तैयार करना है, और हमें फ्यूचर से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, और AI से कैसे बच के रहना चाहिए कि वो हमारा करियर खराब ना करे. पॉइंट तो ये है ना? हाँ, एब्सोल्युटली यही पॉइंट है. से बच के रहना चाहिए कि हाँ, वो हमारा करियर खराब ना करे. ट्रू. ओके, सो ओके, जब हम लोगों ने करियर स्टार्ट किया था, यू एंड आई, है हम्म. ना, हम्म. वी आर लाइक 90s का किड हम्म. है. तो सिंपल सी बात है, हमारे अंदर वो कंपटीशन वाली फीलिंग ज़्यादा है है ना. वो जो कंसेप्ट है कि ये कॉम्पिटिटर है, ये कॉम्पिटिटर है, ठीक है. तो वो आज भी हमारे अंदर किसी ना किसी तरह है, चाहे हम कितना भी अपने आप को एडवांस कर ले, हम्म. ठीक, कितना भी अपग्रेड अपडेट जो भी कहना है कर ले, ठीक है. हम्म. हम्म. पर वो जो एक फीलिंग है, वो एक भावना है, वो रहेगी. हम्म. हम्म? हम्म. उसको बीट करने का सबसे सही तरीका है स्टार्ट एक्सेप्टिंग दैट. सेकेंडली, व्हाट यू हैव हर्ड एन नंबर ऑफ टाइम्स कि अब अपने कॉम्पिटिटर को कोलैबोरेटर की तरह हाँ. देखो, है हम्म. ना. अगर अगर एक एक लेवल पे देखो नवनीता, आई एंड यू आर कॉम्पिटिटर्स, ट्रू. है ना. एक हाँ. लेवल की कर रही हूँ, नॉट लाइक कंप्लीटली, बट एक हम्म. लेवल पे. हम्म. हम्म. आई एम इनटू द राइटिंग इंडस्ट्री, यू आर इनटू द राइटिंग इंडस्ट्री. राइटिंग अगर इंडस्ट्री. उसको अम्ब्रेला सॉर्ट ऑफ देखो तो. एब्सोल्युटली. बट द moment we collaborate, the game changes. हम्म. You don't become my competitor, you become a partner in हम्म. what I am doing, in partner what you are doing, है ना. राइट. तो ये जिसने भी कॉन्सेप्ट निकाला, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, एंड ट्रू. आई फॉर दैट, टोटली एग्री विद यू. बिलीव इन दैट. हम्म. सेकेंडली, कि एआई अपने आप में बहुत ही डीप एंड बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है. और बीइंग राइटर्स जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं, एक्सपर्ट्स हैं, आई वुड से कि वो जो एक्सेप्टेबिलिटी थी जब एआई आया था, हम लोग ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह एआई यूज़ किया है. जब मैं हार्डकोर जर्नलिज्म में थी, सो एज अ जर्नलिस्ट मैंने otter.ai उस टाइम पर यूज़ किया हुआ है. दैट टू एट दैट टाइम, being a journalist, I would say I did not explore what is .ai. otter.ai में .ai क्या है, वो मैं अभी भी सोचती हूँ कि मैंने क्यों नहीं एक्सप्लोर किया. तो शायद उसी टाइम पे मुझे वो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ग्लिम्स और अच्छे से दिख जाता. ट्रू. तो otter.ai उस टाइम पे हम यूज़ करते थे कि जब हम किसी का इंटरव्यू करके आते थे, किसी एंटरप्रेन्योर का या किसी अच्छे डायरेक्टर्स वगैरह का, मैनेजिंग डायरेक्टर हो या सीईओज हो, तो ऑफिस आके हम उसको ट्रांसक्राइब करते थे, उन्होंने जो भी बोला. तो ट्रांसक्राइब आप वर्ड बाय वर्ड पहले की तरह नहीं कर सकते थे. तो मेरे को मेरे कुलीग ने बोला कि दिस इज द टूल, दिस इज द सॉफ्टवेयर, you can easily transcribe your interviews, and I found it very handy. वो उस टाइम से मैं बहुत ज़्यादा otter.ai यूज़ करने लगी थी, तो इट वॉज वेरी गुड फॉर इंग्लिश ट्रांसलेशंस ओनली. जहाँ पे हिंदी वर्ड्स आते थे वहाँ पे वो नहीं पकड़ नहीं पाता. पकड़ता. सो उस टाइम से लेके कमिंग टू दिस, द एरा ऑफ एआई AI, yes. स्टार्ट ही हुई है अभी.
अभी बहुत कुछ आना बाकी है, बहुत कुछ हमें एक्सप्लोर करना बाकी है। हम्म अगेन, जो मेरा पॉइंट अभी थोड़ी देर पहले आया था कि एक्सेप्टेबिलिटी, वी बीइंग द एक्सपर्ट्स, वी बीइंग द इंडस्ट्री, इन द इंडस्ट्री एज द राइटर्स, हम्म हमारे अंदर अभी तक एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आई है। मेरे अंदर बहुत सालों तक नहीं आई थी कि भाई जो मैं लिख सकती हूँ, जो मैं सोच सकती हूँ, वो एआई नहीं कर सकता। हम्म ईगो वाज हर्ट टू बी हम्म हाँ, है ना? ट्रू। हाँ। तो वो लग रहा है कि एआई तो नहीं कर सकता जो मैं सोच सकती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। एआई के नहीं है। पास पता नहीं कितने लोगों का डेटा है जिससे हम्म जिस मास्टरमाइंड ने बनाया है। इट्स नॉट जस्ट द वर्क ऑफ वन पर्सन, इट्स नो, पूरा एक टीम कम्युनिटी जुड़ी हुई होगी, इट्स है ना? इकोसिस्टम ऑल टुगेदर। मास्टरमाइंड्स की ये पूरा इकोसिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है। ट्रू। सो यस, हम एआई के थ्रू बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ लिख सकते हैं, बट देयर इज अ लाइन जो एआई नहीं कर सकता, जो वी एज ह्यूमन वी कैन डू। एंड देयरफॉर आई वुड से कि हमें specifically being writers, being authors, being industry experts, specifically into writing part, हम्म एआई से नहीं डरना चाहिए। क्यों? मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, और अभी कल ही का एग्जांपल है, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो मैं एक 6 साल के बच्चे की कहानी लिख रही थी, शॉर्ट स्टोरी, हम्म कि लेट्स सी व्हाट एआई टेल्स। मैंने मेरा आइडिया दिया एंड विच हम्म वाज लाइक 4 और 5 लाइन्स, हम्म और कहा कि इस पे एक शॉर्ट स्टोरी लिखो। हम्म हम्म, हम्म तो जो पहले 2 या 4 लाइन थी, उसमें क्या था कि मैं एक आइडिया देती हूँ कि मेरी जो कहानी में जो बच्चा था 6 साल का, ही कम्स फ्रॉम अ मिडिल क्लास इंडियन फैमिली। हम्म हम्म तो जब मैंने एआई को दिया और एआई ने मेरे को आंसर दिया, उसमें पहले की 3 4 लाइंस में ही लिखा हुआ था कि इस बच्चे का जो भी नाम, मेरे को अब नाम इतना क्लियर नहीं है, लेट्स से भव्य। हाँ, हम्म भव्य जो 6 साल का बच्चा था, और उसके घर के बाहर नेम प्लेट पे लिखा हुआ था बड़ा बड़ा, भव्य अग्रवाल। हम्म, हम्म हम्म अब दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग एज अ ह्यूमन। हम जो भारत में रहते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, हमारे घर के बाहर कभी भी बच्चों के नाम से नेम प्लेट नहीं होती है ना? हाँ, हमारे घर के बाहर या तो हमारे पेरेंट्स के नाम से होगी, या तो हमारे नाम से होगी, या हमारे हस्बैंड्स, या जो भी ग्रैंड पेरेंट्स के भी नाम breadwinner, होते हैं कभी कभी जो पहले से grandparents, लगे होते जिसका हैं। घर है, हम्म जिसका घर है, we would जिसका say, घर है, ट्रू। हाँ be very specific, है ना? हाँ हाँ हाँ। तो जिसके नाम पे घर है उसी का नाम आता है। वेस्टर्न आ गया ना वहाँ पे। हाँ, तो वो नेम प्लेट उसके नाम से ही होती है, या हम्म आजकल के ट्रेंड के हिसाब से देखो तो मेरे के नाम से हमने नेम प्लेट नहीं सिर्फ ली। बच्चे के नाम से तो नेम प्लेट इज ऑफ नो सेंस। और स्पेसिफिकली 6 साल का बच्चा, ऑब्वियसली। उसके, तो ये चीज एआई नहीं बता सकता। हम्म ये आपके ऊपर है, आपके जो क्या बोलते हैं ना, आईक्यू के ऊपर है, भाई कॉमन सेंस। कॉमन सेंस, है हाँ। ना? हम्म कि भाई ये चीज नहीं होगी। हम्म वो एआई को अभी उतना उतना स्पेसिफिक नहीं पता है, तो इसलिए वो रिप्लेस नहीं कर सकता है। ट्रू। अब अनदर एग्जांपल आई विल टेक ऑफ इमेजेस। हम आजकल देख रहे हैं बहुत सारी इमेजेस हैं, और बहुत सारे टूल्स एआई के आ गए, नॉट जस्ट चैट जीपीटी जो अभी ज्यादा आया, बट गिबली। जिबली ट्रेंड में भी दिखा हमें हम्म कि बहुत सारे लूपहोल्स सामने, मिस्टेक्स, राइट। है Even ना? I बहुत सारे tried one mistakes। AI tool pretty recently for turning a photo into a video. हम्म Right. I'm going हम्म to post a like a tutorial on Instagram for this. हम्म हम्म It was so fake. मतलब a real video will have that emotion into it कि असली इंसान है उसमें, हम्म right? And the photo जिसको वो वीडियो में 5 सेकंड के लिए कन्वर्ट करके दे रहा है, like there are 3 people standing
पहला वाला बंदा हंसा, दूसरा वाला बंदा फिर हंसा, फिर लास्ट में तीसरा वाला बंदा पीछे मुड़ के फिर सामने से हंसा. सो इट वाज लाइक सो आर्टिफिशियल. सो इसीलिए मे बी इसको नाम ही दिया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. बिल्कुल। मैं आपको अभी एग्जांपल देती हूँ। अभी एकदम रिसेंटली मैंने एक बुक कंप्लीट करवाई है, हिंदी की है, पहला कट करके है नाम उसका। नाउ इट्स अवेलेबल ऑन एज ई बुक। सो उसका जो कवर है वो एआई से ही बनवाया है, अच्छा. ठीक। हम्म. अब उसमें हमें एक पिक्चर चाहिए था हनुमान जी का ऑन वॉल, लाइक पेंटिंग सॉर्ट ऑफ, कि वॉल। तो न जाने कितने हम लोगों ने प्रॉम्प्ट इंजीनियर किए हैं टू जस्ट गेट द राइट पिक्चर ऑफ हनुमान जी, क्योंकि वो हनुमान जी की जगह कभी मतलब अलग अलग पिक्चर्स आ जा रही थी, या पिक्चर सही आ रही थी तो बाकी के एलिमेंट्स खराब आ जा रहे थे। सो वी हैड टू इंजीनियर दैट प्रॉम्प्ट कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, तब जाके एक फाइनल हमें जो बिल्कुल जैसा चाहिए था वैसा कवर निकल के आया। सो इट इज सी it is very well known and very popular fact कि the machine is not important, the man or the mind behind that machine is important, है ना। तो एआई तो कब से था, है ना। कैसे क्या यूज कर रहे हैं, कौन उस एआई के पीछे बैठे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। हम कैसे यूज कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। Thank you so much for explaining it this well. Right. So, this is यहाँ पे एक question interesting सा मेरे दिमाग में आ रहा है, as we are discussing about career, growth, etc. Do you think prompt engineering is going to be the next hot job opening in the coming years? It is already. Already. It has already started and it's very hot job. Hmm. किसी को अगर अभी करियर कोई स्टार्ट कर रहा है, they can look into it. It is very, I would say it is very good opportunity. Okay, so any 3 AI tools that you would like to suggest जो लोगों को यूज करना चाहिए apart from ChatGPT? I would be saying ChatGPT a lot, क्योंकि ChatGPT लोग सोचते हैं कि it's just to कुछ लिखा and they'll get the result। नहीं, ChatGPT is very deep. If you explore it, you'll get n number of things from it, just not। और धीरे धीरे तो वो बढ़ता ही चला जा रहा है। देयर आर n number of models like 3, 4o 4। You can schedule like live coach, not life coach। So you can schedule your tasks, you can get all the information, deep research is there on ChatGPT। इमेजेस ऑफ कोर्स गिबली ने इतना वो इसको अभी वो बना दिया है इम्पोर्टेंट। तो अब इमेजेस, बल्कि इमेजेस नाउ आर मोर ऑथेंटिक, दैट इज कमिंग अप, अगर आप अच्छे से प्रॉम्प्ट कर रहे हो तो। देयर आर डिफरेंट softwares within ChatGPT that you can use। Then you can also use Claude for specifically for writing, और ChatGPT, Claude, और तीसरा अगर आपको सेम है, लाइक अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन वगैरह करना है तो टर्बोस्क्राइब है, दैट आई हैव यूज्ड टर्बोस्क्राइब। बट हिंदी ऑडियो का वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। सो इट इज ऑन योर डिस्क्रिप्शन की क्या है, बट आई वुड से ChatGPT इज द वन। रिसर्च करने के लिए परप्लेक्सिटी भी है, and ChatGPT is also good for deep research। So my vote is always for ChatGPT। So it depends on the prompt, how detailed and how well you have trained the Yes, and GPT. ultimately after you get the result, it's just not like copy paste। No, You obviously have not. to work
उस प्रॉम्प्ट देने से पहले ही ऑल्सो यू हैव टू वर्क, एंड प्रॉम्प्ट देने के बाद आफ्टर यू गेट द रिजल्ट फ्रॉम एआई हम्म यू हैव टू वर्क ऑन इट. हम्म जैसे मैंने अभी बताया, वो नेम प्लेट वाली चीज नहीं होगी, दैट यू हैव टू थिंक ऑन योर ओन. हम्म तो ऐसी बहुत सारी चीजें, ऐसे बहुत सारे छोटी छोटी एस्पेक्ट्स होती हैं जो यूजुअली लोग इग्नोर कर देते हैं. वो वी बीइंग द एक्सपर्ट हम सोच सकते हैं उस चीज को. राइट, ट्रू, अग्री. व्हेन आई थिंक अबाउट फिक्शन, मेरे दिमाग में सबसे पहले जेके रावलिंग आती है, बिकॉज शी हैज टच्ड माई मतलब चाइल्डहुड इन अ वे. मैं अभी भी देखती हूँ, इट्स नॉट अबाउट बीइंग अ चाइल्ड, बट हैरी पॉटर इज नॉट अ फिक्शन फॉर मी. व्हेन आई सी हैरी पॉटर आई गेट इनटू द स्टोरी. मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ हो रहा है. मतलब हैरी को मैं सोचती हूँ कि मेरा दोस्त है, तो इट इज लाइक दैट. मतलब इतना पावरफुल उसका स्टोरी लाइन है या इमोशनल है, राइट. व्हेन यू सी कि उसको ट्रबल हो रहा है, यू फील, यू टीयर्स कम इनटू योर आईज. तो फिक्शन इन दैट केस इस तरीके से आ सकता है. तो व्हाट इज द, देखो नॉन फिक्शन तो मालूम है, इट्स अबाउट रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस. कि नॉन फिक्शन में आप सिर्फ सच्चाई लिखोगे, ठीक है, मन घड़न चीजें नहीं लिखोगे. That is the fine line between fiction and non-fiction, right? So can a person be both a fiction and a non-fiction writer? Okay. So, yes, a person can be a fiction and non-fiction writer, and I'll tell you how. सबसे पहले मैं नॉन फिक्शन का एग्जाम्पल देती हूँ कि आजकल जिस तरह की किताबें चल रही हैं और जिससे लोग ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं, वो है कहानियों के थ्रू. ठीक है. Storytelling. स्टोरी टेलिंग, Hmm. एग्जैक्टली. Hmm. सो स्टोरी टेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बी इट फिक्शन, बी इट नॉन फिक्शन. ठीक. तो Hmm. जैसी स्टोरी टेलिंग का पार्ट आता है, आप ये सोचते हो कि नॉन फिक्शन में जब हम बात कर रहे हैं तो हम हर एक एस्पेक्ट ट्रू टू द कोर रखते हैं. Hmm. Hmm. नाउ दैट थिन लाइन इज ड्रॉन व्हेन इट गोज टू फिक्शन. कैसे? Hmm. कि जो कहानी जो आप बीती शायद शायद मेरे साथ हुई, या मेरी बहुत ही क्लोज फ्रेंड नवनीता है उनके साथ हुई, है ना. Hmm. ना नवनीता वो कहीं शेयर कर सकती है, पर क्योंकि मेरा परसेप्शन नवनीता वाले इंसिडेंट को लेके कुछ था जिसको मुझे बाहर निकालना था, Hmm. Hmm. या मुझे लोगों तक पहुंचाना था. ठीक. या फिर मेरा अपना कोई ऐसा इंसिडेंट जिसको मुझे लगता है कि लोगों तक पहुंचना चाहिए, मैं उसको कैसे फिक्शन में बदल देती हूँ, ये मेरी आर्ट है. Right. तो बस यही डिफरेंस है फिक्शन और नॉन फिक्शन में. ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है. अगर आप देखो तो एक फिक्शन भी आपको हेल्प करती है अगर आप उसको ध्यान से पढ़ो, और उतना ही आपको नॉन फिक्शन भी हेल्प करती है. तो जो सेल्फ हेल्प वाला क्राइटेरिया है ना कहीं डिसॉल्व हो रहा है. Hmm. True. So thank you so much, Dr. Sara, for giving so insightful, deep conversation. Like it was a nice experience for me आई वुड to से थैंक यू टू यू नवनीता. chat with क्योंकि you. बहुत Hmm. अच्छे से हमारी Hmm. बातें हुई है ना, True, बॉडी true. चली गई थी कहीं कहीं पर. एंड So, and absolutely I'm blessed to have like to have been invited here by you. my pleasure. Okay, so to end it, I'll ask you 5 rapid fire questions. So, one book that you would read over and over again. October Junction. Author, And also author. author is Divya Prakash Dubey, Mm-hmm. and I would say any book of Emily Henry. It is like more of, she writes more of her main character जो होते हैं वो journalists या writers होते हैं. So I enjoy reading the different aspects, different perspectives she throws.
Okay, thank you So for it is this. more of romance, but yeah, Hmm. I like her writings. Pen and paper or laptop? What's your preferred writing tool? Okay. Pen and paper. It's always here. It's always here. Great, great. If not an author, then what would you have been? If I was not an author, what I would be? So, see, I'm already an entrepreneur. Mm-hmm. I'm an author. I'm a life coach, and certainly it would not have been a job, Hmm. but it would have been something related to entrepreneurship and uh, कोचिंग मेरे अंदर शुरू से था कि वर्ड नहीं पता था भले ही बट ये था कि आई हैव टू कंट्रीब्यूट इन पीपल्स लाइव्स सो आई Mm-hmm. वाज वेरी क्लियर अबाउट दैट Mm. एंड अगर अगर ये सब भी नहीं होता तो फूड नॉट बीइंग अ शेफ बट फूड का कहीं ना कहीं कुछ रोल होता आइदर एज अ ब्लॉगर मीडिया हाउस फूड मीडिया हाउस और फूड इन्फ्लुएंसर आई डोंट नो Okay. गाजर का हलवा और पानी पूरी. पानी पूरी यस We girls. Okay, one word that defines you the best. ह्यूमन Memorable or remarkable feedback that you have received from mentee or a reader. सभी बोलते हैं अच्छा एंड आई एम Hmm. इट्स नॉट अबाउट ओवर कॉन्फिडेंस इट्स नॉट ओवर कॉन्फिडेंस एट ऑल Mm-hmm. बट आई नो कि जो मैंने किया है इट्स गुड Hmm. of course with the help of my team is Hmm. there as a huge support as a spine as my That's spine true. they are there Hmm. see my base values are very clear I prefer authenticity and credibility over anything in the world तो जो मेरी वॉइस है चाहे वो राइटिंग में हो चाहे वो बोलने में हो चाहे वो एक्शंस के थ्रू हो वो ऑथेंटिसिटी और क्रेडिबिलिटी आती ही आती है एंड दैट टू रिफ्लेक्ट्स इन माय क्लाइंट्स वर्क सो आई कैन नॉट सेग्रीगेट कि किसका काम मतलब किसने फीडबैक अच्छा दिया या क्या सबके फीडबैक्स ऐसे ही आते हैं एक ही जैसे कि ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये ऐसे था ये ऐसे था almost similar and it is increasing day by day so through you Nabanita through your podcast I want to thank all of them I'm very grateful and very blessed to receive all those feedbacks and till the date even 3-4 साल के बाद भी वो क्लाइंट अगर इवन बुक अभी नहीं करवा रहे हैं अपनी या बुक कोचिंग नहीं कर रहे हैं मेरे साथ still they are they are there with me and they keep on messaging कि जो आपने बुक करवाई थी it's like have given a different confidence instilled the different confidence in me and the writing was so much me Hmm. सो वो उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे वो जो राइटिंग है वो मेरी अपनी बीइंग मी बीइंग अ राइटर वो ना बन जाए Hmm. मेरी वॉइस Hmm. बन जाए Hmm. उन्हीं की वॉइस रहे Hmm. तो आई वुड से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी Okay. Thank you so much. So we are at the verge of the end of the podcast. So I genuinely thank you, Dr. Sara, for being a part of the show. I really enjoyed conversing with you, and I hope that this podcast is going to help to all the aspiring book authors or content writers or people into this social media field, and they would get good insights. Of course, as our motto is to touch lives of others and make them help them at the end of the day. So, on that note, would you just ask people to subscribe to my channel, Stories with Nabanita? Absolutely. Please do subscribe Stories with Nabanita podcast on YouTube and you'll get all the reels also. So if you come across the reels, do follow. Thank you so much. Thank you so much. It means a lot.
And thank you so much for giving me this time. I'm really thankful from the bottom of my heart. So I wish you all the very success in whatever you're doing. You keep on doing this and make life of others, touch the life of others. And on that note, let's end the podcast here. Thank you. Namaskar. Namaskar.